Welcome back. Now we are going to discuss question number 26. What are the major differences between the metals and non-metals? हमारे प्राइमरी एजुकेशन से हम पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स, सेकेंडरी एजुकेशन से पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस. लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नंबर वन, to the metal side, they have strong tendency to lose electron to form cation. Metals are having strong tendency to lose electron and they readily forms cation, while non-metals having a strong tendency to accept electron and forms anions. हम जानते हैं कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कैशाइंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम having electronic configuration 281, losing one electron and produces cation 28. Like chlorine, electronic configuration is 287, having strong tendency to gain electron and producing anion. So metals are having strong tendency to produce cation, anions produced by non-metals. So it's a point of difference between metal and non-metal. Number two, metals are strong reducing agent. Strong reducing agent. In your 10th standard, you have studied about oxidizing agent and a reducing agent. Oxidizing agent, reducing agent. Now, oxidizing agent and reducing agent क्या? Those oxidized themselves, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, they are behaving as a reducing agent, and those reduces themselves, they are good oxidizing agent. Now what is oxidation? Oxidation is losing of electron. एक डेफिनेशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है, सो दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है. जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दे आर बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. याद रखो, the substance which get oxidized behaves as a reducing agent, and the non-metallic element जो reduce होती है, reduce मतलब gaining of electron, reduction means gaining of electron. electron gain करना उसको reduction कहते हैं, electron lose करना उसको oxidation कहते हैं. जो substance oxidize होता है वो बेहतर reducing agent होता है. जो substance reduce हो रहा है वो oxidizing agent होता है. So ये तरीके से हम सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कह सकते हैं दैट मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट्स द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. थर्ड वन, metals have low ionization enthalpy. Low ionization enthalpy we already studied in a periodic table. On the left hand side we are having metal. Periodic table में left hand side पर metals है, और while moving from left to right in the same period, ionization enthalpy increases. इसका मतलब ये है कि metals are having low ionization enthalpy. Alkali metals, alkaline other metals हम जानते हैं group 1, group 2 elements के ionization enthalpy low होते हैं. While non-metallic elements, they are having higher or high ionization enthalpies. Metals produces basic oxide. मतलब metals जब oxygen के साथ combine होते हैं, they produces oxides. These oxides are basic in nature. While non-metallic elements produces acidic oxides. तो ये थे पॉइंट ऑफ डिफरेंस. 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने डिस्कस किए. पहला, metals are having tendency to lose electron and form cation. Non-metals are having tendency to gain electron and forms anion. Number 2, metals are strong reducing agent. Non-metals are strong oxidizing agent. Number 3, metals have low ionization enthalpy. Here, non-metals are having a high ionization enthalpy. Number 4, metals form basic oxide when reacting with oxygen, while non-metallic elements forms acidic oxide when reacting with oxygen. So it's your question number 26. Now we are moving forward for the question number 27. 27th question. Use periodic table to answer the following question. कुछ questions दिए गए, हमको बोला गया है कि आप periodic table का इस्तेमाल करें, इसके आंसर दे सकते हैं. I think सबके पास periodic table होगा. एक बार फटाफट निकाल ले and we'll start. Number 1, identify the element with 5 electrons in the outer subshell. कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी आउटर सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. ग्रुप 15 निकाल लो भाई. ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली. चेक द नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली जो ग्रुप 15 बिलोंग करती है,
वो पूरी फैमिली में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन ही है. सो नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी मेंबर, नाइट्रोजन इटसेल्फ हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. कौन सा एलिमेंट ऐसे जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन किसका है? +2 आयन कौन बनाता है? Mg2+, Ca2+, मतलब अल्कलाइन अर्धन मेटल्स. ग्रुप 2 एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 2 एलिमेंट है, वो सभी की टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 चार्ज अक्वायर करने की होती है. एंड दैट्स व्हाई द आंसर टू द क्वेश्चन इज द अल्कलाइन अर्थ फैमिली. अल्कलाइन अर्थ फैमिली मतलब ग्रुप 2, दे बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. एलिमेंट का नाम देकर तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, Ni. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, जिनकी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन फैमिली. याद करो ऑक्सीजन. ऑक्सीजन उसकी फैमिली में मतलब वैसी ग्रुप के सारे एलिमेंट ऐसे जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं. सो ये क्वेश्चन का आंसर था ऑक्सीजन फैमिली के कोई भी एलिमेंट. ऑक्सीजन इटसेल्फ, उसका नाम भी दे सकते हो आप. 16th ग्रुप एलिमेंट इन शॉर्ट. सो ये था आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 27. वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द 28th क्वेश्चन. 28 number. The increasing order of a reactivity among the group 1 element is lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. ये रिएक्टिविटी ट्रेंड है, जबकि हेलोजन्स के लिए उल्टा दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. Why it happens? Trends in reactivity. भाई रिएक्टिविटी ट्रेंड जो है वो अल्कली मेटल्स में मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, व्हाइल हेलोजन इट गोज ऑन डिक्रीजेस. ऐसा क्यों? रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट फॉर द अल्कली मेटल्स मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस एंड फॉर द हेलोजन मूविंग डाउन द ग्रुप इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. व्हाई इट हैपेंस सो? ऐसा क्यों होता है? Now we'll take a look at the first family, which is alkali metal: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. You know that ये सभी एलिमेंट में मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. इसका मतलब ये है कि लिथियम की कंपैरिजन में सोडियम जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सोडियम की कंपैरिजन में पोटेशियम जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, रुबिडियम जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. सो लिथियम की कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. एंड दैट्स व्हाई फॉर द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मूविंग डाउन द ग्रुप देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का केस देखें तो मूविंग डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. वजह यही है कि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, इलेक्ट्रॉन गेन ईजी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. अगर हम दोनों ही कंडीशन देखें तो मूविंग डाउन द ग्रुप दोनों ही डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने की वजह से, और ये दोनों ही इनकी रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनमें ये ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जा रहा है. तो फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव होगा अमंग द हैलोजेंस, और यहां पर लिथियम जो होगा वो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करेगा. हमने ये भी देखा है कि फ्लोरीन की कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है. तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो इट्स आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 28. मूविंग फर्दर we'll discuss next question, question number 29. What is the general electronic configuration for S block, P block, D block and F block elements? भाई ब्लॉक वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको पता ही है. S ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS1 to 2, where N can be 2 to 5 और 2 to 7 Ni. जो S ब्लॉक एलिमेंट है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो NS फॉर्म में NS1 to 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब S ऑर्बिटल में 1 या 2 कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. नाउ फॉर द P ब्लॉक एलिमेंट इट कैन बी NS2 NP1 to 6.
मतलब p ऑर्बिटल में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। अगेन n की वैल्यू हो सकती है 2 to 6 p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। फॉर d ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंटरेस्टिंग है, आप सब जानते हो। पहले लिखना होता है n-1 d 1 to 10, मतलब d ऑर्बिटल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ns ऑर्बिटल, उसके बाद की जो ns ऑर्बिटल है उसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जहां पर n की वैल्यू हो सकती है 4 to 7। 4 to 7 याद रखना, ये 4 होगा तो ये d होगा, मतलब d ऑर्बिटल की शुरुआत 3d से होती है, आपको याद हो तो। p की शुरुआत सेकेंड ऑर्बिट से होती है, सेकेंड। f ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की n-1 था, इसके बदले n-2 लिखेंगे। फिर f में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? 1 to 14, 1 से लेके 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी हम 0 to 14 लिख सकते हैं। 0 इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो देयर इन सब f ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा उसकी जो d ऑर्बिटल है उसके लिए 1 - nd लिखना होता है, 1 - nd, d में 0 to 1, और ns ऑर्बिटल के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर f ब्लॉक एलिमेंट है, जहां पर n की वैल्यू 6 या 7 दोनों में से कोई भी हो सकती है। सो ये था आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 29 आई थिंक इन द लिस्ट। नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 30। In a question number 30, they was assigned the position of the elements having outer electronic configuration। कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दिए है, और उनकी पोजीशन हमको मेंशन करने को बोला है कि वो कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, और वो कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। मैं पहला वाला एलिमेंट समझा देता हूं आपको, बाकी क्या आप खुद ट्राई कर लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ns2 np4 फॉर n इज इक्वल टू 3। अब ये n इक्वल टू 3 ये इंडिकेट करता है दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। अगर n की वैल्यू 4 होती तो हम कह सकते हैं दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड बिकॉज ऑफ n इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू 3 है, ये थर्ड पीरियड है। और थर्ड पीरियड के अलावा एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, एंड दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू p ब्लॉक। ये p ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहली बात n की वैल्यू 3 ये इंडिकेट करती है थर्ड पीरियड का है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, सो दैट्स व्हाई बिलोंग्स टू p ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे अब इसका ग्रुप डिसाइड करना है। ग्रुप डिसाइड करने के लिए मुझे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं। वैलेंस मतलब जो प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। सो 2 + 4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा, p ब्लॉक में ग्रुप नंबर कहां से शुरू होता है? याद करो p ब्लॉक 13, 14 ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है। सो ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ग्रुप नंबर होगा 16। 10 में ऐड कर देंगे, रीजन लिखने का 10 + 6, समझ गए? ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए उसको 10 प्लस कर देने का, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके बेसिस पर। सो ये 16th ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये लोग 16 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 6 4 4 6 10 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एनी डाउट? और अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या होना चाहिए? इट मे बी सल्फर, ये सल्फर होना चाहिए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 30। उसका सब क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हैं। आई थिंक आप कैपेबल हो इसको सॉल्व करने के लिए, ट्राई करो, और फिर ना हो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। We are moving for the next question, question number 31 given in the list. Let's see what we are having in 31. The first ionization enthalpy and the second ionization enthalpies and the electron gain enthalpy in kilojoule per mole of few elements are given. Okay, कुछ एलिमेंट दिए गए हमको, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6,
उनके फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उनका सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी गई है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यू नो दैट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है वो भी पता है। कुछ टेबल में ये वैल्यूज दी गई है और उसके नीचे कुछ आंसर है, सॉरी क्वेश्चंस है। Which of the above element is likely to be the least reactive element? हमको पूछा गया है कि इसमें से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। चेक करें लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए सबसे पहला काम करो कि उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जरा उस पर नजर दौड़ाओ तो। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो फिफ्थ एलिमेंट की सबसे हाईएस्ट है, 2372। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 31 है ये। 2372 इज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलॉटेड टू द फिफ्थ एलिमेंट। और उसकी इतनी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो सकता है। ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है शायद वो मैच करता है फॉर द हीलियम, वो हीलियम को मैच कर रहा है और इसी की मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो सकता है, विच इज क्वेश्चन, विच इज एलिमेंट नंबर 5। द सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें से रिएक्टिव कौन सा है? सेकेंड एलिमेंट ढूंढे, सेकेंड एलिमेंट उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लीस्ट है, उसकी वैल्यू है 419। जिसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जिसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है दैट मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो हम कह सकते हैं कि मेटल नंबर 2 इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। देखो मेटल था तो हमने क्या चेक किया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। जब भी नॉन मेटल की बारी आएगी, चेक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रेफरेंस के लिए चेक करो एलिमेंट नंबर 3। एलिमेंट नंबर 3 जो है उसकी हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के तौर पर हम यहां पर वही एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं जो फ्लोरीन की जगह ले पाएगा। ये मैच करता है समवॉट टू द फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -328, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। आगे बढ़ सकते हैं। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछा है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। चेक आई थिंक नंबर 4 नंबर चेक करें तो एक मिनट, मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के लिए एलिमेंट नंबर 4 हैज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है बट नॉट सो हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड देयरफॉर इट इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। फोर्थ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तो है लेकिन उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी हाई नहीं है और उसका मतलब यह है कि ये कॉम्बिनेशन की वजह से वो हमारा लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बन जाता है। नेक्स्ट, द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2 टाइप। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो MX2 टाइप ऑफ हैलाइड बनाएगा? बाइनरी मतलब जिसमें 2 हैलोजन होंगे। तो ये एलिमेंट के लिए हमारा सिलेक्शन जा रहा है आई थिंक एलिमेंट नंबर 6 पर। द एलिमेंट 6 हैज लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चेक 738, but higher than that of an alkali metal. Therefore, it appears that the element is an alkaline earth metal and hence will form a binary halide of formula MX2. MX2 टाइप की हैलाइड कौन बनाता है? MgCl2, CaCl2। मतलब बाइनरी हैलाइड्स कौन बनाता है? अल्कलाइन अर्थन मेटल्स। तो यहां पर जो एलिमेंट है उसमें से अल्कलाइन अर्थन मेटल ढूंढनी है, मैं ढूंढ ली। एलिमेंट नंबर 6 इज अवर कल्प्रिट जो MX2 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करता है और ये मेरे ख्याल से मैग्नीशियम को रिसेंबल करता है, ये मैग्नीशियम जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर पोजेस कर रहा है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द मेटल व्हिच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX टाइप। MX टाइप ऑफ
हैलाइड कौन सा एलिमेंट बनाता है? आई थिंक द फर्स्ट वन, एलिमेंट 1, ये कंप्लीटली बिलोंग करता है MX टाइप ऑफ हैलाइड फॉर्मेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ये हमारा अल्कली मेटल हो सकता है और ये अल्कली मेटल ही MX टाइप के हैलाइड बनाते हैं। सो हमारा कल्प्रिट ये जो है उसके लिए है लिथियम। ये लिथियम की प्रॉपर्टी को मैच करता है जो एलिमेंट नंबर 1 हमको टेबल में दिया गया है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 31। जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी टेबल में उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस थे उसको हमने ये तरीके से आंसर किया हुआ है। नोट्स साथ में मैं भेज रहा हूँ, डीपी भी भेज रहा हूँ। जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सारे आंसर उसमें है ही। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड would be formed by the combination of the following elements। कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके वजह से बनने वाले बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन आप बताइए। मैं पहले दो बता देता हूं, फिर बाद में आप अपने आप इसको निपटा देना। लिथियम एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? लिथियम एंड ऑक्सीजन। बचपन में काम करते थे, लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, हम साइन को रिमूव कर लेते हैं और जो कंपाउंड बनाता है वो Li2O बनना है। तो ये था लिथियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड Li2O। सिंपल। मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, Mg एंड N। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, नाइट्रोजन की 3, 2 और 3। सो विल एक्सचेंज इट एंड द फॉर्मूला इज Mg3 ये तरीके से इसको आप फिनिश करें। बाकी के क्वेश्चन ये तो कॉपी करें। फर्स्ट डे कल एक और लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर जिसमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन भेजा जाएगा। फिर फर्स्ट डे का लेक्चर, लाइव लेक्चर आज नहीं, थर्सडे। लाइव लेक्चर वेडनेसडे और फ्राइडे 2 दिन में। कल एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें सॉल्यूशन आएगा और फिर टेस्ट होगा। मेरे ख्याल से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 32। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक कौन था। आगे बढ़ सकते हैं। 32 के बाकी के जो आंसर है वो अपने आप कंप्लीट कर लीजिए। विल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मेज़िमुथल क्वांटम नंबर्स। क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई पीरियड इनमें से कौन सी वैल्यू इंडिकेट करती है? वेदर द पीरियड विल गिव अस एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। आंसर इज इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ईच पीरियड बिगिंस विद द फिलिंग ऑफ अ न्यू शेल एंड देयरफॉर द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो n की वैल्यू है n = 1, जैसे कि न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, तो ये n1, ये n की वैल्यू 2, ये n की वैल्यू 3, ये n की वैल्यू 4। ये तरीके से ये जो n है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और हर एक पीरियड एक नए ऑर्बिट से शुरू होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। Which of the following statement related to the modern periodic table is incorrect? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? स्टेटमेंट ए, द p block has 6 column because a maximum of 6 electron can occupy all the orbitals in p subshell। करेक्ट है। p subshell, p जानते हो ना, p में 3 घर होते हैं, 2px, 2py, 2pz और टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। and that's why the statement 1 is correct। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, the d block has 8 column because maximum of 8 electron can occupy the orbital in d subshell। गलत। अगर आपको पता हो तो d ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक कॉलम है। 3 to 12 कितने कॉलम हुए? 10। हमको बोला गया है 8। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि d ऑर्बिटल में अगर आप जानते हो d ऑर्बिटल, तो d में 5 ऑर्बिटल होती है और 5 में 2-2 के हिसाब से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10।
और हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में भी 10 ब्लॉक्स है, 10। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के ब्लॉक्स जो है वो डी में बिलोंग करते हैं। दैट्स व्हाई आवर सेकंड स्टेटमेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 34 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे जानने की जरूरत नहीं है, 34 का आंसर जो है वो बी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर। नेक्स्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 35। एनीथिंग that influences the valence electron will affect the chemistry of the element. Which one of the following factor does not affect the valence shell? नीचे दिए गए फैक्टर में से कौन सा फैक्टर वैलेंस शेल को अफेक्ट करता नहीं है? नंबर 1, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, इट कैन अफेक्ट। वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो अफेक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज, यस, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो अफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो प्रोटॉनिक चार्ज होता है, it also affects the property, it also affects the chemistry of that element. Nuclear mass, correct. Nuclear mass does not affect. Mass जो है वो इफेक्टिव होता नहीं है for a valence electrons. So यहां पर न्यूक्लियर मास जो है वो ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 35. 36 number is the size of a isoelectronic species F, Ne and Na plus is affected by, मतलब F माइनस Ne और Na प्लस की साइज का जो डिफरेंस है वो किसके थ्रू, मतलब किससे अफेक्टेड होता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं न्यूक्लियर चार्ज। यस, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम जानते हैं साइज जो है वो न्यूक्लियस में रहे हुए प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। तो कोई भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो साइज है वो साइज उसका न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 36 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव 37 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इट इज? लेट्स सी। 37, which of the following statement is incorrect in relation to ionization enthalpy? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के एस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नंबर 1, ionization enthalpy increases for each successive electron, but obviously moving left to right in the same period ionization enthalpy increases, मतलब हर एक सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के लिए ionization enthalpy इंक्रीज होती है। दैट्स करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। नंबर 2, the greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of the electron from the core noble gas configuration, but obviously एक्साइट और हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की। एक बार नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लो, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एसोसिएटेड विद द कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टेटमेंट बी इज आल्सो करेक्ट। थर्ड वन, द एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बट ऑब्वियसली एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर वैलेंस ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है 3s में और 2p में, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल अगर करना हो तो ये दोनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी में लॉन्ग जंप होगा, मतलब ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इसकी कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है दैट एंड ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हो गए then it marked by a big jump in ionization enthalpy, तो ionization enthalpy का बहुत बड़ा लीप लेना पड़ता है to remove the second electron, but obvious है। so statement जो है थर्ड वाला वो भी करेक्ट है। so अब बचा हमारा D, that will be the answer for the given question, but still discuss कर लेते हैं। removal of electron from the orbitals bearing lower n value is the easier than from orbit having a higher n value। गलत है। हम जानते हैं कि मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है या 3s में से, 4s में से या 5s में से, तो कौन सी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा? 5s में से। ये स्टेटमेंट उल्टा कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है 2s में से वेरी इजीली। गलत है। मूविंग डाउन द ग्रुप एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम मोर एंड मोर इजियर। सो ऑप्शन D is your correct answer for the question number 37। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना था वो D था। D is an incorrect statement। Next 38 number, considering the element boron, aluminium, magnesium, potassium, the correct order of their metal character is
मेटालिक कैरेक्टर इज, हमको कुछ ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये फर्स्ट ऑर्डर दिया है। सेकेंड ऑर्डर इज एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बोरॉन, फिर कैल्शियम। थर्ड ऑर्डर सी, विच इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड बोरॉन। इन द फोर्थ ऑर्डर पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। मैं चाहता हूं कि पहले हम ये चारों की पोजीशन क्या है वो बता ले पहले से। ये ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट, देन वी आर हैविंग ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट में पोटेशियम है यहां पर सोडियम के नीचे, मैग्नीशियम है यहां पर, एल्यूमिनियम उसी के साथ है और उसके ऊपर बोरॉन है। ये पोजीशन हो गई पीरियोडिक टेबल में। हम जानते हैं कि मूविंग लेफ्ट राइट इन द सेम पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो यू जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो जिसकी वजह से सबसे हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका हुआ? मूविंग डाउन द ग्रुप पोटेशियम हाईएस्ट। इसमें से सबसे हाईएस्ट में पोटेशियम का है, एक ही ऑप्शन है डी, एंड दैट्स व्हाई डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट मूव टू द 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, consider the element B, C, N, F and Si. The correct order of their non-metallic character is. ये सभी का non-metallic character मेरे ख्याल से आप इसको खुद पहचान लोगे। लेफ्ट राइट non-metallic character increases and down the group decreases। इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूं, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग खुद लगाना। ऑप्शन सी for the correct answer of question number 39. 40 number, considering the following element, रिएक्टिविटी में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए। इसका भी आंसर मैं आपको शेयर कर लेता हूं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40, बट स्टिल आप खुद इसको सॉल्व करना अपने इंटेलेक्ट से। साथ में मैं इसकी नोट्स भेज रहा हूं डीपीपी, जिसका इस्तेमाल करके ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करके तैयार कर देने। सो ये था एक और एडिशनल लेक्चर जो हेल्प करेगा आपको टू सॉल्व द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। विल मीट सून with another chapter. Till then, goodbye.